بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ نیوز کے ساتھ ماسی مصیبت حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اب چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ کہ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف لندن میں کیا کر رہی ہیں؟ میدان پاکستان ہے، ڈیرہ اور لندن یہ چکر کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو 2 روز قبل پاکستان کے اندر میدان لگا یعنی ضمنی انتخابات میں، اور اس میں مسلم لیگ نون کو منہ کی کھانی پڑی۔ سر دیکھیں نا، 5 جو ہیں نشستیں اس پر آپ کے امیدوار کھڑے ہوں، اور 5 کی 5 پنجاب میں ہوں، فیصلہ آباد ہو، ننکانہ ہو، ٹھیک ہے، اور پائن تسی 5 دے وچوں صرف 1 سیٹ جیت سکو، اور ساری سیٹیں آپ ہار جائیں۔ آپ کے امیدوار جو ہیں، جو وہاں پر ایک نشست پر پہلے وہ 1,500 ووٹ سے ہارے ہوں، یہ فاروق حبیب کے مقابلے میں عابد شیر علی صاحب اس دفعہ پائن 25,000 کی لیڈ تو ہار جان۔ شجرا منصف صاحبہ نے تو چلو پھر بھی مقابلہ کیا، کو 10-12,000 کی لیڈ تو ہری۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے، اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں، مقامی قیادت اور جو قیادت آج کل انٹرنیشنل ہوئی بھی ہے، یعنی ظاہر ہے نواز شریف صاحب، وہ بڑا پرابلم پیدا ہوا ہے کہ پائے نے آخر مسئلہ کی ہے، کتنے گل پھنسی۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ جناب ذرا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بناؤ۔ دسو سر، تسی امیدوار سے چوز نہیں کیتے، مسئلہ کہاں پھنسا ہے؟ کسی نے تعاون نہیں کیا، کوئی کمپین نہیں پراپر چلائی گئی، کوئی پیسے اندر رولا سی، پرلے پاسے پائن کو بہت زیادہ مالدار سامی آ گئی سی۔ ساڈے نال کی ہویا؟ ساڈے نال کوئی برادری ساڈی نہیں کھلوتی، لوکل دھڑے تھے جو آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر سکے پراپر طریقے سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جولائی میں ضمنی انتخابات ہوئے 20 صوبائی نشستوں کے اوپر، 15 نون لیگ آ گئی۔ اس وقت نون لیگ والوں نے کہا، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، باقی سب نے، کہ جناب یہ سارے چونکہ لوٹے تھے، ہم نے دوسری جماعت کے بندوں کو ٹکٹ دی تھے، تو ہماری جو اپنی جماعت کے لوگ تھے وہ دھڑوں نے کہا جی اسی تو ووٹ نہیں پانا بوجی، جو مرضی کر لو۔ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ہار گئے۔ ویسے ساڑا ووٹ ودیا ہے، کٹیا نہیں۔ یہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا، یہ تو جہاد جو ہیں باقاعدہ پیش کی گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب تو بھائی نے تسی لوٹا کوئی نہیں پڑیا، اب تو بلکہ فیصل نیازی جیسا لوٹا آپ میں سے نکل گیا، وہ پرلے پاسوں بھی جا کے جت گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کے اپنے لوگ جو تھے وہ ہار گئے۔ تو کیا وجہ ہوئی؟ ہر معاملہ کیا ہے؟ تو اس پر ایک کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اب وہ کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی، لیکن ابتدائی طور پہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، میں ویسے ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، میں آپ سے عرض کروں، لیکن جو ظاہر ہے کہ دی گئی رپورٹ میں آپ کے سامنے وہ رکھنے لگا ہوں۔ اس میں کہا گیا جی جناب مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتا۔ دیکھیں، مہنگائی میں اضافہ ہوا، ملتان جڑا ہے وہ کوئی مطلب ہے کہ دلی کے کول واقع ہے، یا ملتان جو ہے وہ لندن کا حصہ ہے، اتنے نہیں مہنگائی ہوئی، تو جیت گیا نا کینڈیڈیٹ، محنت کرنے سے جیتتا فائن۔ یہ جو ہے نا لیم ایکسکیوزز ہیں ویسے معذرت کے ساتھ، لیکن دیے جو گئے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر بجلی کی بھاری بل ہے سر، میں پھر اگین وہی بات کروں گا کہ ملتان اور کراچی میں بجلی کے جو بل ہیں وہ سر اتنے رہنے والے ڈالر ہی نوٹ پیسے کماندے ہیں، مطلب وہ بھی تو روپوں میں کماتے ہیں، روپوں میں پے کرتے ہیں۔ جنہ بل لاہور دے وچ مہنگا پیندا ہے انہاں دے بھائی نے کتے پیندا ہی نہیں، اور ٹھیک ہے، یا ملتان میں بھی ظاہر ہے میپکو بالکل سنگھی تے گوٹھا رکھ کے پیسے لے لیندے میپکو والے، تو وہ انہوں نے بجلی دے بل نہیں پیندے۔ پھر پارٹی کی مفاہمانہ بیانیاں، کس کے ساتھ مفاہمت کی ہے پارٹی نے؟ فرینکلی صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر مفاہمت کی ہے تو پیپلز پارٹی نے سر اس کے جواب میں اپنے آپ کو گواہ بھی تو لیا۔ ابھی بھی یہ بات کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت نہیں تھی، کن مفاہمت کرنی سی، اور ٹھیک ہے، تو یہ ایک، یا پھر کس کے ساتھ مفاہمت کی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت نہ کیتی ہوندی بھائن تے اس وقت کیا یہ جو لندن کی ٹھنڈیاں ہوا تہاڈی قیادت کھا رہی ہے، یہ لندن کی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہی ہوتی؟ نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ ایک ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد آ جائے جناب کہ قیادت کی عدم دلچسپی، یس، قیادت کی عدم دلچسپی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ جو عابد شیر علی ہیں، یہ جو شجرا منصف صاحب ہیں، یہ جو باقی جتنے آپ کے کینڈیڈیٹ ہرے ہو رہے ہیں، یہ سارے کینڈیڈیٹ جو ہے نا، یہ اپنے آپ دے وچ ہی لڑتے لڑتے رہے، یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب مالٹم سے باہر نہیں آئے۔
मरियम साहबा को पासपोर्ट लगा तो उन्हें छूट बचती, वो सीधी लंदन जाके रुकी। ठीक है, वो लंदन क्यों गई हैं इस पर मैं आपको भी बताता हूँ, और वो वहाँ पर डेरा क्यों लगा के बैठी हैं इस पर 2-3 चीज़ें सामने आई, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई असल खबर उसी में आपको मिलेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारा कुछ अभी इब्तदाई रिपोर्ट में एक खाका सा बना के दिया गया है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कहा नहीं काका इंज नहीं, पूरी एक फैक्ट फाइंडिंग करें और फैक्ट फाइंडिंग करके मुझे पूरी एक रिपोर्ट जो है वो अरसाल करें। और जाहिर है कि ये काम अब मियाँ ने कहता इन्होंने ने सुन लिया, अब जिसको कहा है वो आगे राणे सना को कहेगा, राणा सना कहेगा ठीक है फिर बना लो। वो जो है समीउल्लाह खान इस तरह के किसी बंदे की ड्यूटी लगा देगा, वो बैठ के जनाब इन्होंने पॉइंट्स में मजीद थोड़ा जहा घड़ घड़ा के वो रिपोर्ट भेज देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर ही चला, ना कोई एक्शन होगा ना गल ना बात, बस दिन गुजर गया। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जो मैंने कहा कि लंदन में डेरे क्यों लाए ने पाए। रोला तो लाहौर च पिया सी, रोला तो इस्लामाबाद पिया है, इतने लांग मार की गल्लां हो रही हैं। इतने इमरान खान मिनट बाद उठता है, वो कहना मैं लॉन्ग मार्च करूँगा 30 अक्टूबर से पहले करूँगा। अच्छा फिर हालांकि हालत ये है कि इमरान खान साहब कल गए हैं तो उनको एक साफ़ी के सवाल जो है ना वो पाए एक साफ़ी तो करता बस इमरान को कोई जरा साफ़ी होता है, और वो किसी के पासेदा नहीं होता, यानी ना नून के पासेदा होता है ना वो तहरीके इंसाफ के पासे होता है। बस इंज कहते वजदा आगे रह जाते तो इमरान खान की बोलती बंद हो जाती है। भाई बिल्कुल क्लीन बोर्ड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं बकायदा तौर पर। उसने पूछा कि खास साहब तुम माशाल्लाह इन्नी सीटां जित गए 6 तो असैम्बली जाओगे। अब खास साहब का कोई जवाब नहीं था, खास साहब की जवाब दें। कालिया ने कहा कि संजय दत्त अली लगा जा रहे थे। ओ भाई बात यह है कि आपने इलेक्शन का टेस्ट किया, 6 सीटों से जीते हैं माशाल्लाह, तो अब जीत गए तो अब असम्बली जाएंगे। सवाल है ना, ये करना चाहिए, उन वोटर्स को पूछना चाहिए कि इमरान खान को वोट दिया किस लिए दिया, कि वो उनके हलके की रिप्रेजेंटेशन करे असम्बली में जाके। रिपोर्टर ने पूछा भाई असम्बली जाओगे, भाई चुप, बिल्कुल ऐसा जिस तरह कोई मुंह जबान ही नहीं है भाई ने, इसलिए कि वो एक चीटिंग कर रहे हैं कौम के साथ। वो उन्होंने ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ा ताकि उर्ला पाई रखन। अब यहाँ पर वो 6 हल्कों में से किसी पर हल्फ नहीं लेते, किसी एक में भी लेते, 6 महीने का आराम ना बह सकता ना हो, ये 3 महीने तक। इसका मतलब है कि 6 हल्कों की कम अज़ कम वो जो है रिप्रेजेंटेशन वो सर उनको ब्लॉक करके रखेगा अगले 3 माह तक या 6 माह तक, जब तक भी कानून इजाज़त देता। ठीक है, वो पहले एक कानून था जिसमें वो चौधरी निसार अली खान ने 4.5 साल के 3.5 साल हलफ ही नहीं लिया था आगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कानून बनाने लगे हैं तो चौधरी निसार अली खान दौड़ता आया विग समेत और आगे हलफ ले लिया। अब इमरान खान उसका क्या कहते हैं मेंटली फर्स्ट कज़न है। ठीक है, जिस तरह वो खुद पसंद बहुत है इस तरह ये भी बहुत खुद पसंद है, और दोनों क्लास फेलो भी हैं HSN कॉलेज के, तो ये भाई साहब जो हैं उसी तरह करेंगे। तो एक सवाल था तो इमरान खान क्लीन बोल्ड था। उसके बाद जगह जी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो कहीं मार्शल लग गया, तो फिर कहता है जिस वक्त मौलाना फजल रहमान ने किया था उसने तो मार्शल नहीं लगा। तो मतलब खान साहब जो है ना वो जो कुछ कर रहे हैं वो सारे का सारा रिएक्शनरी है, और वो सारे का सारा ये है कि जनाब किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक अजाब जो है वो मुसल्लत किए रखे, अनरेस्ट रहे, पॉलिटिकल अनरेस्ट रहे। और यहाँ पर तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये भी कहते पाए गए हैं कि जनाब कल उन्होंने कहा है कि हमारी मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं खास साहब? सवाल है, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? हुकूमत नलते नहीं हो रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हम जो हैं वो एपोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं। तो ताड़े बहन के नाल मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर हो रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो बताए, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाकई हो रहे हैं तो सवाल ये कि इस्टेब्लिशमेंट के किस हैसियत में कर रही है सर मुज़ाकरात आपके साथ? उनकी तो कोई आईनी हैसियत नहीं है, और आप भी अगर कर रहे हैं तो आप किस आईनी हैसियत से कर रहे हैं अपने साथ? ताड़ा काम में जाके घुमन ना करो। अगर हुकूमत के साथ हो रहे हैं तो वही सामने लेकर आए, मान तो लिया ना आपने, कहते बेनतीजे है अभी तक। तो पॉइंट बेनतीजे रहने ने ट्रक की बत्ती जरूर जी तुसी लाई है लोगों ट्रक की बत्ती मगर लाया अजे। ठीक है कि अच्छा वक्त आएगा तो वो ताड़े तो बड़े देर का आ गया जरूर, जो आपके पीछे लगे उन बेचारों पर नहीं आया। तो उस तरह ही ट्रक की बत्ती मगर अगले भी तो ला छड़िया, मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझ रहा हूँ। लंदन के अंदर सर बहुत अहम
मामला जो है वो डिस्कस हो रहा है। और मेरी इतलात तो खैर यही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहता कि भाई ने जेड़ा पहले नंबर पे आंदा ना वह ला दो, यानी जो मेरिट पे बनता है, जो सीनियरिटी के अतबार से पहले नंबर पे आता है उसको लगा दें। आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। मेरी तो इतलात यही है कि मियाँ साहब जो हैं कम अज़ कम वो इस हद तक क्लियर हो चुके हैं। हो सकता है कि मियाँ साहब जो हैं उनकी तरफ से ऐसी वाइब्स जो आ रही हैं, ये जो बताया जा रहा है वो गलत बात में साबित हो जाए। सियासत है पाकिस्तान की, इतने 2 + 2 4 तहत सारा कुछ थोड़ी होता है। तो लेकिन फ़िलहाल ऐसी इतलात है। अब मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि मरीम साहबा को पाकिस्तान में रहना चाहिए था और पाकिस्तान में रहकर उनको अपनी जो है वो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसमें कैंपेन चलानी चाहिए थी। वो नास के लंदन चली गई। उस पर मुझे जो बताया गया वो ये बताया गया कि सर लंदन के अंदर 2 चीज़ें चल रही हैं और ये 2 मुख्तलिफ ज़राए से खबरें हैं। एक ज़रिया जो है वो कहता है कि मरीम साहबा के मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनके कोई ऐसे मामलात हैं मेडिकल के जो लंदन में ट्रीट होना ज़रूरी है, तो इसके लिए फौरी तौर पे गई हैं। ये बात खैर उन्होंने भी की थी। लेकिन एक और बात इसके साथ नथी की गई है वो ये है कि जनाब उनकी कोई जो है फेस की कोई सर्जरी वगैरह शायद इस तरह के कोई मामलात हैं। अच्छा, ये मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा अहम नहीं लगती बात कि मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज शरीफ को फेस की सर्जरी कराने की लोड़ है। पता नहीं, मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात उनके मुखालफिन ने उड़ाई है। सड़ के नहीं चुकते लोग की गल, साड़ जिन्होंने पिया होंगे उन्होंने जो किसी ने जो है ना ये बात की है और ये मुझ तक पहुँची है वैसे, लेकिन मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ। और इससे अलावा बात है वो ये है सर कि चूँकि लंदन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब अहम तरीन फैसले लेने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला जैसा कि बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी विच ना बढ़ने ऐसे फैसले दे, यानी शहबाज शरीफ की हद तक वो मान गए हैं, ठीक है, कि शहबाज शरीफ कर दे, नवाज शरीफ ना बड़े विच, ठीक है। तो नवाज शरीफ ने तो फैसला करना है भाई, और मेरा ख्याल तो वो कर चुके, लेकिन वहाँ पर फैसला चूँकि होना है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डेरे डाले हैं लंदन में इस वक्त और अपनी अपनी लॉबी हो रही है, अपने अपने मनपसंद बंदे की लॉबी हो रही है, ये कह लें। और मनपसंद बंदे की लॉबी करने लिए काफ़ी सारे लोग इस्लामाबाद तो लंदन गए हैं। ये इमरान शफकत साहब इस हवाले से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उन्होंने काफ़ी खुल के बातें की हैं। लेकिन जो बात मैं जिसको कंफर्म कर सकता हूँ वो यही है कि वाकई वहाँ पर लंदन में डेरे लगे हुए हैं। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो अहम तरीन ओहदे के लिए एक अहम तरीन तैनाती है उस हवाले से, बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ अहम तरीन जो हैं अपना लोग वो भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ चूँकि राब्ते में रहते हैं, तो इसलिए मरीम नवाज शरीफ साहबा को मियाँ साहब ने उत्थे पाया है कि इत्थे बैठ, होता है ना कि मैं अपना जो वारस है उसको मैं अपने दोस्तों के साथ मिलाता जाऊँ कि ए मेरा वारस है जे, ध्यान करना ज़रा, ठीक है। वो मुँह से कराने जा रहे पाए कि ए मेरी वारस है जे गो सियासी, ठीक है। तो मियाँ साहब जो है ना वो इसलिए उन्होंने मरीम को वहाँ बैठाया हुआ है और वो उनके सब के साथ उन मुलाकातों में मरीम साहबा को साथ रखते हैं और उनको बताते हैं कि एक तो जाहिर है कि मरीम साहबा को वो गोर जो हैं वो सीख रही हैं अपने वाला साहब से, दूसरा उनका तारुफ होता जा रहा है बतौर वारस के, ताकि बाद में जो है रोला ना पाए, यानी सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, ठीक है। तो वो चीज़ों को सनद के तौर पे जो है वो रखा जा रहा है। इसलिए मरीम साहबा जो हैं उनका जो इस बात की हमायत करते हैं ना नून लीग के लोग कि उन्होंने ठीक किया लंदन में बैठी हैं, तो वो कहते ये हैं कि सर भट्ट साहब है जेडे 16 अक्तूबर का इलैक्शन है तो 6 सीटर का इलैक्शन है, इसका प्लस माइनस कोई हुकूमत फ़र्क नहीं पै रहा। हमारी नज़र अगले साल के इलैक्शन पे है, हमारी नज़र आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और फिर उसके बाद पैदा होने वाले हालात पे है, तो असी अगला साल वेख रहे हैं। छोटी छोटी गल्लां मगर नहीं सी नस रहे, साड़ी नज़र च गोल वड्डा है, हम उसके पीछे जा रहे हैं। लिहाजा इस बात को ज़रा आप जहन में रखें। मेरे तक ये बात पहुंची थी, थोड़ी सी लॉजिकल भी लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि आप तक ज़रूर पहुंचा दूं ताकि ये ना हो कि तुसी कहो कि यार इधर की गल कर गया तो उधर की की नहीं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया कि मरीम साहबा के नज़दीक इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का अगला सरबराह कौन होगा और फिर जो अगले साल के इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन है
ਉਹਦੇ 'ਚ हालात किवें अपने हाथ च रखे जाएंगे, ये चीज़ ज़्यादा अहम है। और उसको टारगेट किया हुआ है। निके मोटे ज़िमनी इंतखाबात जो है इनको वो टारगेट नहीं कर रही, ये मुझे बताया गया था। मैं जनाब देखे रखता है। अब आपका जो भी ख्याल होगा इस पर लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। चलो कितने मिलते हैं अगले विलास में।